ओके अंकल। Okay. What we could see is the law has some jurisdiction over the lives of the people. प्लीज रिपीट द सेंटेंस The अंकल। chapter 7 verse 1, the law has jurisdiction over a person as long as he lives. ओके, सात अध्याय के एक वचन में बात लिखा है कि जब भी एक व्यवस्था के जानने वाले व्यक्ति के ऊपर में जब तक वो जीवित रहता है, वो व्यवस्था उस पर प्रभुता करती है। So when husband dies, then wife is freed. और जब एक पति किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी स्वतंत्र हो जाती है। So um, that's what he says. And then he connects to verse 4. My dear brethren, you also were made to die to the law. That is the ultimate crux of the matter. और चौथे वचन में वो कह रहा है कि तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। You were made to die to the law through the body of Christ. और वो कह रहा है कि वैसे ही है भाई, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। Okay. Uh, we are made to die. That we need to earmark very, very clearly. Then only we'll be और connected to Christ. If we are not, our relationship is not severed with the law, then we cannot be connected to Christ. That's what I was saying, explaining the analogy between husband and wife. और पति पत्नी के बीच के संबंध के द्वारा पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कि वैसे ही हम भी व्यवस्था के लिए मरे हुए बनकर मसीह की देह में हम जुड़ जाते हैं, जैसे पति पत्नी के लिए एक समान लिखा हुआ है। So let me take you to my PPT. Yeah. So, and then verse 4, we have seen that you are put to death in regard to the law through the body of Christ. That's very important. You are put to death in regard to the law through the body of Christ, so that you might belong to him who was raised from the dead, in order that you might bear fruit to God. और चौथे वचन में पौलुस कहते हैं, वैसे ही है मेरे प्रिय भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए तो मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। And then verse 6 says, but now we have been released from the law, having died to that law which we were bound, so that we serve in newness of the Spirit and not in oldness of the letter. और इसलिए छह वचन में वो कहते हैं, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर उस व्यवस्था से छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। Now you need to understand the struggle within every believer. तब आप समझ सकते हैं कि कैसे हर एक विश्वासी के जीवन में एक संघर्ष चलते रहता है। I think you got the big picture of the chapter 7. और मैं विश्वास करता हूँ कि सातवें अध्याय का एक बड़ा सा चित्र आपके हृदय में आया होगा। What Apostle Paul was saying was, I have a struggle within myself. I wanted to do good, but I am not able to do good. I hate something which I should not do, but I am helplessly doing that. और पौलुस इस अध्याय में अपने संघर्ष की बात बता रहा है और वो कह रहा है कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है और मैं कुछ अच्छा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ। And he says, there is nothing good dwells in me, and there is evil present within myself. और पौलुस कहता है कि मेरे वो शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है और बुराई चल कर मेरे पास आ जाती है। But I rejoice in the word of God in my mind, but I am not able to practice what I rejoice in my mind. और मेरा मन और हृदय तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न है, परंतु व्यवहारिक जीवन में मेरे इस आनंद को मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखती है। In the first few verses he says that I need to be cut off from the
influence of the law, although law is holy, although law is righteous, although law is spiritual, but law is unable to help me to overcome. Law is only pointing out, law is only instructing, law is only exposing the wrath of God, and my helplessness. और पौलुस शुरुआत के कुछ वचनों में बता रहे हैं कि व्यवस्था तो पवित्र है, आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, परंतु जो ये व्यवस्था है ये केवल पाप को प्रकट कर रही है। और परमेश्वर की जो वचन है ये हमें जो व्यवस्था है ये निर्देश देती है कि किस प्रकार परमेश्वर का जो क्रोध है हमारे ऊपर व्यवस्था के कारण आ सकता है यदि हम उसे ना माने तो। And then verse 24 he says, verse 24, wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? और 24 वचन में रोमियो की किताब 7 में पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। I think each and every one of us to come to this point. और मैं सोचता हूँ हमें से प्रत्येक लोगों को इस बिंदु पर आना चाहिए। If we don't make a cry of this kind, the way how Apostle Paul did, I think we will never ever find any solution. और मैं कहता हूँ जैसे पौलुस इस वचन के अनुसार कैसे वो अपने लिए चिल्लाया है, परमेश्वर को पुकारा है, इसी प्रकार हम भी अगर ना पुकारें तो हम कुछ किसी बात को समझ नहीं सकते। And then verse 25, Apostle Paul says, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, on one hand, I myself with my mind am serving the law of God, but on the other, with my flesh, the law of sin. और 25 वचन में पौलुस कहते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। For what he was thanking God, और पौलुस की इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। I have quoted in red color. I myself with my mind am serving God. And again he says in verse 22, I joyfully concur with the law of God in the inner man. तो पौलुस जो है किस बात के लिए आनंदित हो कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का सेवन करता हूँ, जैसा कि वो 22 वचन में भी कहता है कि मेरे भीतरी मनुष्यत्व में मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ। But in the verse chapter 8, there we find the solution. परंतु जब हम 8वें अध्याय में हम जाएंगे तब हमें इस सारी बातों का समाधान या हल मिलता है। Just first two verses gives the beautiful clearance. Chapter 8, verse 1 and 2. Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and of death. और परमेश्वर के वचन में रोमियो की किताब 8 अध्याय के 1 और 2 वचन में ही एक बहुत बड़ा समाधान हमारे लिए प्रकट होता है, जहाँ ऐसा लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। The value and depth of the truth that is loaded in chapter 8, verses 1 and 2 is properly understood only when we understand the struggle Apostle Paul was explaining in chapter 7. और प्रियो जो सत्य और एक गहरा जो प्रकाशन और एक हल जो है प्रेरित ये रोमियो की किताब 8 अध्याय के 1 और 2 वचन में दिया है पौलुस ने, उसकी बातों को हम तब समझ पाते हैं जब 7 अध्याय की संघर्ष भरी बातों को हम पढ़ते हैं। To a person who is crying and shouting, saying that, wretched man that I am, who will set me free from the body of this death? This is the good news, chapter 8, verses 1 and 2. और अगर कोई मनुष्य चिल्ला रहा है, पुकार रहा है 7 अध्याय के 24 वचन के अनुसार कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, तो उसके लिए रोमियो 8 अध्याय का 1 और 2 वचन एक बहुत बड़े उत्तर और समाधान को लेकर आता है। Therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, who are united in Christ Jesus. और यहाँ लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात जो मसीह यीशु में आज एक हो गए हैं। Why? क्यों?
And the atonement executed, atonement offered as a Lamb of God, which took away the sin of the whole world, the Lord Jesus Christ. The atonement is for them, those who believe in Him, those who are in Christ. और प्रियो, एक बहुत बड़ा बलिदान जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, क्योंकि वो एक मेमने के समान जगत के पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि उनके जीवन में उन्हें छुटकारा मिले। और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, मसीह यीशु में। By faith, when we trust the Lord Jesus Christ and His finished work of redemption on the cross of Calvary, our sins are forgiven. We are washed with the precious blood of Jesus Christ, and Holy Spirit enters into our life. और प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, तो हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने छुटकारे की कीमत हमारे लिए क्रूस पर चुका दी है। और इसके द्वारा हमें पाप क्षमा मिली है, उसके लहू के द्वारा हमें शुद्धता मिली है, और उनके द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिलता है। Because of the sin that dwells in us, because of the the evil that dwells in us, we are helpless, we are almost dead, and we are powerless. और जो पाप हमें बसा हुआ है, और जो बुराई हमें बसी हुई है, उसके कारण प्रियो हम मृत व्यक्ति के समान हो जाते हैं और सामर्थ्यहीन हो जाते हैं। But when Holy Spirit enters into our life, we have the resurrection power operating in our life. That's what he says in verse 2. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. परंतु प्रिय, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, तब हमारा पुनरुत्थान हो जाता है और हम आत्मा में जी उठते हैं, जैसा कि रोमियो की किताब 8 अध्याय के 2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Now you will appreciate chapter 7 verse 4, where Apostle Paul says, "My brethren, you also were made to die to the law through the body of Christ, so और that तब you आप might be united to Jesus Christ, who was raised from the dead, in order that we might bear the fruit for God." अभी आप 7 अध्याय के 4 वचन की प्रशंसा कर सकते हैं, जहाँ पौलुस कहते हैं, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। Now you will appreciate the truth that is said in chapter 6, that we were united in the death of Jesus Christ through baptism. We were crucified when Jesus was crucified. Our old man was crucified along with Jesus Christ. When Jesus Christ died, I was dead. When Jesus Christ was buried, I was buried. When Jesus Christ rose again, I also was rose again along with him. और तब आप तारीफ कर सकेंगे, और 6वें अध्याय में जो मसीह के साथ हमारा बपतिस्मा हुआ, उसकी सच्चाई को समझ सकेंगे कि कैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो मैं भी उनके साथ चढ़ाया गया, यीशु मसीह जब उसमें मारे गए तो मैं भी उनके साथ मारा गया, यीशु मसीह को जब गाड़ा गया उनके साथ मैं भी गाड़ा गया, और यीशु मसीह जिस प्रकार मृतकों में से जी उठे, उसी प्रकार मैं भी उनके साथ जी उठा। People may ask you, brother, how it is possible? और लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि ये भाई, ये कैसे संभव है। I know it, I believe it, I reckon it, I yield for it. और वो इसलिए क्योंकि मैंने जाना, मैंने विश्वास किया, और मैं उसमें गिना गया, और मेरे अंग ने उसका भागी हो गया। By faith, I was saved by grace of God. और मैं विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पा गया। By faith and convictions of the scriptures of the Holy Spirit, and then the law of Spirit of life in Jesus Christ has set me free from the law of sin and death. और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ने उसके वचन को कायल किया मेरे जीवन में, और मैंने उस पर विश्वास किया, और मैं पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र हो गया। यहाँ वचन लिखा है रोमियो 8 के 2 में। It is a progressive on and on every day it will happen. और प्रियो, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो एक के बाद एक प्रतिदिन होती रहती है। Yes, we will have struggle.
हाँ, ये जरूर है कि हमारे साथ संघर्ष होता है। We'll cry out, "Oh, wretched man, who will help me?" और हम पुकार सकते हैं कि मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। Then the Holy Spirit is there to our rescue, for our rescue, and He gives us the life so that I will overcome the law of sin and death. और तब पवित्र आत्मा मुझे छुड़ाता है जब मैं उसे पुकारता हूँ, और वो मुझे जीवन देता है, और पाप की व्यवस्था से, मृत्यु की व्यवस्था से मुझे ऊपर उठा लेता है। That is how I enjoy victory over sin, and I am preserved till the last ounce of my life. और इस प्रकार मैं पाप के ऊपर जय पाता हूँ, और अपनी विजय को मैं जीवन भर बनाए रखता हूँ। So I believe you could understand, at least to some extent. If you are listening for the first time, you may have to listen again and again. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कुछ हद तक, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो। लेकिन अगर इसे आप बार बार सुनेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। It's a deep thought, it's a deep truth, but if you understand this, you will really appreciate, how our life is being processed in the path of holiness. ये बहुत ही गहरा विचार है, और एक गहरा सत्य है, परंतु जब आप इसे जानते रह जाएंगे, आप अपने जीवन में बहुत ही एक गहरी पवित्रीकरण को अनुभव करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें।